हाँ। Okay, Nikhil, Yes, sir. you can please start your introduction. Okay. So, good afternoon, ma'am, and good afternoon, sir. A very distinguished good afternoon to everyone joined with us today. I am Nikhil Kausal, a postgraduate from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow, and a former researcher at CSIR IITR. It is my absolute privilege to serve as your host for this prestigious session. Before we begin, I express our deepest gratitude to Dr. A.M. Deshmukh, sir, President of the Microbiology Society India. Sir, thank you for your visionary leadership and for providing us with this incredible platform to facilitate such high level scientific discussions. It is now my pleasure to welcome Dr. Soranjit Singh sir, a former chief scientist at CSIR MTech Chandigarh and currently the director of SAS Polyclinic. His contribution to environmental biotechnology and legendary. What makes her truly exceptional is his dedication to the Stay Fit Mission India and his recognition as one of the top 2% global scientists for 5 consecutive years. Sir, your commitment to the both excellence in research and the upliftment of society is a constant sources of motivation for us. Welcome to the session, sir. Now it is my distinct honor to introduce our eminent speaker for today, a trailblazer in the world of microbiology, Dr. Renu Agrawal ma'am. As the former chief scientist of CSIR CFTRI, ma'am has redefined the landscape of probiotic and rural development. Her legacy is not just in the 67 plus research paper she has authored, but in the 45 scholars she has mentored in the scientists of tomorrow. A recipient of the Dr. APJ Abdul Kalam Lifetime Achievement Award and a dedicated philanthropist for over 25 years, her journey is a perfect testament to how science can be used as a tool for global impact. Ma'am, we are truly privileged to have you with us. Without further ado, I would like to request Dr. Renu Agrawal ma'am to kindly take this session toward and lead with through this session. So thank you, sir, and thank you, ma'am. Thank you very much, Nikhil, for your kind words. And I would like to thank MSI for organizing it, especially Dr. Swaranjit Singh, who has been communicating, and he is having such a big this buttermilk campaign all over the world, I should say. I'm very grateful to him for this. Thank you very much. Shall Thank I you. start? Yes, please. Yes, ma'am. इस वार्ता में, क्योंकि मुझे हिंदी में बोलने को कहा गया है, तो मैं हिंदी में इसमें बात करूंगी। और इस वार्ता में जो है, ये सूक्ष्म जीवी जो है, वो किस तरीके से आंत से लेकर और मस्तिष्क तक की स्वास्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो जिस तरीके से हम अलग अलग तरीके के खानों को खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोबायोटिक्स हुआ, जो भी हम खाना खाते हैं, वो जो है आंतड़ियों में जाके उसका फर्मेंटेशन होता है, उससे बहुत अलग अलग तरीके के मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जिससे कि हमको स्वास्थ्य जो है हमारा अच्छा होता है। अगर हम प्रोबायोटिक की डेफिनेशन को देखें, तो वो जो है ऐसे सूक्ष्म जीवी हैं जो हमको आहार से, इसके आंतों से जो है एक संतुलन बनाए रखते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छे रखते हैं। इसी तरह एक प्रीबायोटिक होता है जो कि कंज्यूम नहीं किया जाता, वो एक इस तरीके का फाइबर है जो कि प्रीबायोटिक कहलाया जाता है, और वो प्रोबायोटिक की संख्या को मल्टीप्लाई करता है। अगर प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों ही लिए जाए तो उसको सिम्बायोटिक कहते हैं। अगर हम प्राचीन काल में देखें, तो हमारे भारतवर्ष में ये लस्सी खाना या बटर मिल्क लेना प्राचीन काल से चला आ रहा है, क्योंकि ये जो है हमारी आंतों के सूक्ष्म जीवी को अच्छा करता है, अच्छे लाभकारी बैक्टीरिया को वो देता है। अगर हम ये फैक्टर्स देखें कि ये कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो कि हमारे आंतों के माइक्रोबियल सिस्टम को चेंज कर रही है, तो हम देखें तो उसको एक एंटीबायोटिक हुआ, या माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हुए,
या हमारी डाइट हुई, क्रॉनिक डायरिया हुआ, कोई किसी तरीके का तनाव तो नहीं है, या क्लोरीन का पानी अगर हम पी रहे हैं, या कीमोथेरेपी, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो कीमोथेरेपी करते हैं, या कोई डिप्रेशन वाला है, तो इस तरीके के जो चीजें हैं वो सभी जो है हमारे माइक्रोबायोटा को या सूक्ष्म जीवी जो हमारे गट में है उनको वो चेंज कर सकते हैं। अगर हम प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये खाली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, हम आईबीएस, आईबीडी, एलर्जी, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, बाइल सीक्रेशन, सभी चीजों को जो है ये अच्छा कर सकते हैं। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिशियल क्वालिटीज हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि खाली अगर वो बैक्टीरिया खा लिया तो क्या उसको हम प्रोबायोटिक कह सकते हैं? क्या इसी तरह हम किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी ईस्ट को खाएंगे तो उसको प्रोबायोटिक कह सकते हैं? नहीं। ये बहुत जरूरी है कि वो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं तो वो सरवाइव करना चाहिए, उसको इंटेस्टाइन में जाके कॉलोनाइज करना चाहिए, चिपकना चाहिए, और फिर उसको जो है मल्टीप्लाई करना चाहिए वहां पर, और उसकी जो वाइबिलिटी है बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और हमारे जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें देखना चाहिए कि नॉर्मल डाइट में क्या है, पैथोजेनिक ये नहीं होना चाहिए, टॉक्सिजेनिक नहीं होना चाहिए, और हमेशा जो है एक लाभकारी इफेक्ट इसको देना चाहिए। और ऑल्सो ये देखा जाए कि ये सूजन तो नहीं कर रहा, या म्यूटेशन तो नहीं कर रहा, कोई परिवर्तन तो नहीं कर रहा, या प्रतिरक्षा तो नहीं उत्तेजित कर रहा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने कल्चर में पहले ये देखा जाए, तभी उसको प्रोबायोटिक कहा जा सकता है। अब जैसे हम खाना खाते हैं तो देखा जाए तो ये ईसोफेगस से लेके खाना जो है स्टमक में आता है और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा कहाँ कहाँ पे ज्यादा है। ईसोफेगस में अगर देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में रहता है, और स्टमक में भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है कम मात्रा में रहते हैं क्योंकि एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर वो जेजुनम में आता है जहाँ एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ते हैं अराउंड लॉग ऑफ 5, और फिर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखें तो वो बढ़ते जाते हैं और वहां पर जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं। फिर कोलोन में जब बड़े इंटेस्टाइन में आया तो कोलोन में 10 to 12 हो जाते हैं जहाँ पे मेनली एनएरोबिक बैक्टीरिया रहते हैं, और एनस तक जाते जाते ये 1000 टाइम्स एनएरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो फीकल ट्रांसप्लांटेशन भी करा जा रहा है, क्योंकि ये एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है बहुत लाभकारी होते हैं और बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। अगर ये सब मैं अपना आपको जो दिखा रही हूँ सारी स्लाइड्स, ये मेरे अधिकतर लेबोरेटरी मेरी टीम के वर्क की है। और ये जो हम देख रहे हैं इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ पीडियोकोकस का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से सिमुलेशन, बहुत सारे मैं इंटरनेशनल जर्नल्स की रिव्यूअर हूँ जहां मैंने देखा कि वो सिमुलेशन अंडर डिफरेंट मतलब इंटेस्टाइन की कंडीशन में नहीं करते। जैसे पहले आप स्टमक में करिए जहाँ पीएच खाली 2 रहता है। अगर हमने शुरू में देखिए हमने 8 CFU, लॉग ऑफ 8 CFU पर ml लिया है, लेकिन आधा घंटे के समय में ही pH 2 पे इतने ही 7.2 रह जाते हैं। अब इसको ही हमें आगे लेके जाना है जेजुनम में जहां pH 7.5 है और 4% बाइल हो जाता है। आप सोचिए कि pH 2 से 7.5 उसको चेंज करना है और माइक्रो प्रोबायोटिक्स को उसमें सरवाइव करना है जहां 4 घंटे वो रहता है, और फिर ये ही कल्चर हमको आगे लेके जाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां pH 8 हो जाएगा और 2% बाइल सॉल्ट रह जाएगा जो 12 घंटे रहता है। और अल्टीमेटली कोलोन में अगर हम देखें तो pH 9 हो जाता है जहां 1.5% बाइल सॉल्ट रहता है, जहां 24 घंटे हमारे ऑर्गेनिज्म को रहना पड़ता है। तो इतने जो है ऑर्गेनिज्म वाइबल हुए जिसको हम आगे प्रोबायोटिक कह सकते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि वो खाली वो थोड़ा सा किया और उसको कहते हैं प्रोबायोटिक है, वो नहीं कर सकते। ये जब तक कि हम ये सब नहीं करें, बहुत सारे प्रोबायोटिक स्ट्रेन है लैक्टोबैसिलस के, एसिडोफिलस प्लांटेरम वगैरह, बिफिडोबैक्टीरियम है, बहुत प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, पर क्या वो रियली प्रोबायोटिक है मैं आपको देख बताऊंगी बाद में। और इसी तरह स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह, लेप्टोकोकस वगैरह हुआ, ल्यूकोनोस्टॉक हुआ, ये सब प्रोबायोटिक्स में आते हैं। एक और चीज जो हम बड़ी देखने लायक है कि आप जैसे ही आजकल डायरिया हुआ या कुछ इन्फेक्शन हुआ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं, और उस एंटीबायोटिक के साथ आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि वो आपको प्रोबायोटिक का कैप्सूल देते हैं। अब एक प्रोबायोटिक का कैप्सूल 35 रुपीज 40 रुपीज का आता है। ये बहुत जरूरी है देखना कि किस तरीके का वो एंटीबायोटिक है और वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट है या नहीं है। अगर वो ऑर्गेनिज्म को जो है वो खत्म कर रहा है,
अगर हमने मान लीजिए डॉक्टर ने हमको क्लोरामफेनिकॉल दिया और उसने हमको ये दे दिया कि आप ये वाला प्रोबायोटिक ले लीजिए, लेकिन वो उसके रेजिस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा कि हमने जब एंटीबायोटिक खाया, प्रोबायोटिक खाया, तो प्रोबायोटिक तो मर गया, क्योंकि ये तो एंटीबायोटिक उसको इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले डॉक्टर कल्चर के लिए आपको कहे, आप कल्चर करिए उसका एंटीबायोटिक, जिससे वो लोग देखते हैं, और वो रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंट है, मतलब कि उसके एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में जो है ये ग्रो कर सकता है प्रोबायोटिक, तो वो फायदेमंद होगा। इसी तरह जब हम ये सब, मैं आपको अपने लेबोरेटरी का रिसर्च दिखा रही हूँ, जो एडहेशन एबिलिटी है, वो ये तो जितने भी इंटरेक्शन होते हैं ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं। तो शुरू में तो आप इनको हाइड्रोफोबिक जितने डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं उसमें देख सकते हैं कि कितना जाके ये एडेशन करेगा हमारे इंटेस्टाइन में। फिर ये हमने इन विट्रो भी इंटेस्टाइन की आप ले सकते हैं, ये हमने रैट की इंटेस्टाइन ली थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल्चर जो जाके एडहेयर कर रहा है। उसके बाद आपको ये एसडीएस पेज करना है, जिसमें हम, ये तो प्रोटीन मार्कर है, और अगर प्रोबायोटिक कल्चर है तो उसमें ये जो है एस लेयर प्रोटीन होता है, जिससे कि वो जाके एडहेयर करते हैं इंटेस्टाइन की वॉल पर। तो आप इसमें देख सकते हैं ये 37 किलो डाल्टन या 40 किलो डाल्टन का, मतलब बहुत कम किलो डाल्टन के ये प्रोटीन होते हैं, जो एस लेयर प्रोटीन कहलाते हैं, ये जाके चिपक जाते हैं। ये फिर हमने रैट में करा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कल्चर जो है किस तरीके से रैट की वॉल पे जो है चिपक गए और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया कि वो जाके चिपकने भी चाहिए, और चिपकने के साथ वो फिर मल्टीप्लाई, कॉलोनाइज करने चाहिए और मल्टीप्लाई करने चाहिए। अब जैसे इतने सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन हुआ, आपका एम्पिसिलिन हुआ, इसी तरह जो नेचुरल जो बैक्टीरिया से, प्रोबायोटिक से बनते हैं, उनको बैक्टीरियोसिन्स कहते हैं। जैसे एसिडोफिलस हुआ तो उसमें लैक्टोसिन हुआ, एसिडोसिन हुआ, गेसेरी हुआ तो गेसेरेसिन हुआ, उसके ऐसे इन्होंने नाम दे दिए हैं स्पीशीज के ऊपर या जेनेरा के ऊपर। एक मेरे पास इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था अर्जेंटीना के साथ, जब हमारे पास बहुत ये विब्रियो कॉलेरा का बहुत ज्यादा हुआ था आक्रमण। तो ये अगर आप देखें तो इसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में विब्रियो कॉलेरा जो है ऐसे चमक रहा है। और फिर जब हमने अपना प्रोबायोटिक कल्चर डाला, और हमारे अर्जेंटीना की लैब के साथ भी हमने किया कि उनके पास बैसिलस सबटिलिस था, तो वो कितना कम हो गया। इस पे हमने काफी सारे, हमारे पास पेटेंट भी है और बहुत सारे पेपर हमने इस बारे में पब्लिश किया। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी हमने किया, जिसमें लिकोनोस्टक और बैसिलस सबटिलिस दोनों एक माल्टिट रागी में हमने उसको बनाया और देखा कि किस तरीके से कॉलेरा जो है कम हो सकता है। इसी तरह मेरा पास एक और डीएसटी प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने शिगेला के अगेंस्ट बैक्टीरियोसिन बनाया पीडियोकोकस से। और इसमें अगर आप देखें तो शुरू में हमने सुपरनेटेंट कल्चर ले लिया। अच्छा, एक और बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कल्चर का ग्रोथ क्या है। आपने उसको भाई लैग फेज में लिया है, लॉगरिथमिक फेज में लिया है, स्टेशनरी फेज में लिया है, या डिक्लाइन फेज में लिया है। क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि हम आज कर जाएंगे इनोकुलेट और कल आके काम कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। अगर हमें वो देखनी है एक्टिविटी, तो मैक्सिमम एक्टिविटी के टाइम हमें कल्चर को लेना पड़ेगा। मैं रिव्यूअर की तरह भी अधिकतर जर्नल्स में ये पूछती हूँ कि आपका टाइम ऑफ कल्चर ग्रोथ कितना है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है देखना कि कल्चर ग्रोथ आपने कब लिया, नहीं तो एक्टिविटी नहीं आएगी। फिर उससे हमने एसडीएस पेज करके, फिर एचपीएलसी, और फिर एलसीएमएस करके मास स्पेक्ट्रा जो है मॉलिक्यूलर मास को किया। अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन से पहले डीफैट करके, फिर एसडीएस पेज करके एक्टिव फ्रैक्शंस को लेके, और फिर आवाज आ रही है किसी की पीछे। अपना माइक आप क्या बंद कर रही है? 6 hours म्यूट कर लीजिए। ഓക്കെയാണ്. അതിനുശേഷം അതിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ 1.5 കപ്പ് അരിയിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കരിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ്। तो एलसीएमएस फिर हमने उसको करके उसका मास स्पेक्ट्रा जो है पता करा कि क्या है। ये भी हमने काफी सारे Today we're making stir-fried water spinach. Is it okay? No, first better she On the decide base what of the water spinach. Then cut it in small tomorrow sections. this is third day. Wash it twice thoroughly. High blood pressure, Drain then it will and be place all on the diseases. Add 1 tablespoon of salt, Hospital only have to go. half a मैडम teaspoon, म्यूट कर And then लीजिए whatever इसको we थोड़ा। are taking, half a teaspoon of sugar. तो रंजीत Oil सर, and add a little lard. Add minced garlic and dried chili. And stir fry until fragrant. Add the water spinach. Stir fry quickly. Of help for them. Exactly. Then I Put the sheet, give Now only we have to see that to how it has stability. म्यूट कर लीजिए सर। Stability and mobility. yes, sir.
That's what I तो एंटी शिगेला पे भी हमने ये देखा कि डिसेंट्री एक्टिविटी किस तरीके से प्रोबायोटिक कल्चर Hello. में Please off your mic. No, but that she can Please off your finalize mic. now what exactly she wants to do. सर ऑर्गेनाइजर को बोल दीजिए कि वो सारे सबको म्यूट कर देना। ये मैं करता हूँ अभी। Okay then. Yes. That person will no. Get for One more person he was there. Okay. Otherwise, I would have called you, sir. No, but they no are not problem. No problem. Don't worry. Yeah, sir. Huh? Like I will mail you, sir. Yes, Hello, yes, sir. Prakash, off your mic. If you I'm send tomorrow, doing it. I will submit tomorrow. Yeah, right now I will make the letter. Can you get? I will sign by those two. Those two have to sign. तो एंटी शिगेला No, sir. So that's what I will just prepare the letter and go. Because here it is. Right. प्रकाश आपका माइक आप म्यूट कर लेंगे क्या? Sir, one guy. प्रकाश कैन यू He was sitting there. He was working on iron availability. Hello, Prakash. Can you off your mic? Where is he, sir? I don't know. He was here. I cannot do it somehow. Okay, then you tell me about it. Yeah. There is some problem in the I mute all. Hello, Prakash. Hello, Prakash. अच्छा मैं बोलती हूँ शायद उनका उन्होंने तो ये भी हमने एंटी शिगेला का भी हमने काफी सारे पेपर्स वगैरह में पब्लिश किया और हमारे पेटेंट्स भी हैं इस पे। तो पीडीओ कोकस पे जब हमने इस पे काम किया और हमने ये ह्यूमन सेल लाइंस पे भी दिखाया कि किस तरीके से ये जो है शिगेला को डिसेंट्री को खत्म कर सकता है। रैट्स पे पहले हमने किया फिर उसमें दिखाया कि डायरिया भी अगर हम देखें तो लिटरेचर में हमें दिखता है कि क्लॉस्ट्रीडियम से इकोलाई से कैम्पाइलोबैक्टर से और इवन शिगेला और साल्मोनेला से काफी डायरिया की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ये प्रोबायोटिक देते हैं ये हमारा लेबोरेटरी का काम है। ये आप देखें कि हमने ना इससे कैस्टर ऑयल से इसको डायरिया इंड्यूस किया था रैट को और किस तरीके से कितना ये लेथार्जिक हो रहा है। जैसे हमने प्रोबायोटिक कल्चर दिया तो इन वेरी लेस टाइम इतना एक्टिव हो गया कि एक जना पूंछ पकड़ रहा था और फिर हमको उसकी फोटो खींचनी पड़ी। इस तरह से अगर हमने इसका एससीएम में करके देखा इंटेस्टाइन का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इधर अगर आप देखें तो इकोलाई है पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होके किस तरीके से ये लैक्टोकोकस जो है उसने एडहेयर किया और कोलोनाइज किया है। तो इस तरीके से जो है डायरिया जो है खत्म हो सकता है। तो हमने एविडेंस अपने रिसर्च के हिसाब से और ये हमने पब्लिश किया है पेपर। इसी तरीके से एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया भी बहुत कॉमन है कि जब भी डॉक्टर्स मेडिकल डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं उसके साथ डायरिया हो जाता है। इसीलिए आजकल वो प्रोबायोटिक कल्चर भी साथ में देने लगे हैं। तो पर लेकिन वो देखना बहुत जरूरी है कि वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है कि नहीं। उसी तरह हमें ये भी देखना है कि ये जब कैप्सूल्स में आते हैं तो वो क्या स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, वायबल है या नहीं है। बहुत सारे एक तो मेरे स्टूडेंट ने इसी पर रिसर्च किया कि जितने भी हमने मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने लाके लैब में देखा कि वो वायबल है या नहीं है। एंड सॉरी टू से मोस्ट ऑफ देम वर नॉट वायबल। तो हमने जब लैब में देखा तो अगर उनमें ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स एज एडजुवेंट्स आप ऐड कर लेते हैं तो ये जो है अगर आप देख सकते हैं पिक्चर तो बहुत वायबल काफी लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं और ये आप देखें तो लाइज हो जाते हैं विद इन अ मंथ। इसी तरह हमने फिर फ्रीज ड्राइंग किया क्रायो प्रोटेक्टेंट्स डाल के लाइक लैक्टोज पेग एंड पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल एंड सुक्रोज। तो अगर हम इनिशियल सेल काउंट से देखें तो वो 3 महीने तक मतलब लॉक तो सेम रहता है, ऑफ कोर्स सेल नंबर कम हो जाता है। और माइक्रोबियल बीट भी हमने कैल्शियम आल्जिनेट का बीट ट्राई किया, उसमें भी काफी शेल्फ लाइफ ज्यादा रहती है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है कि अमाउंट जो है ऑफ द CFU पर बीड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मतलब फ्रीज ड्राइंग जबकि बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन उसमें जो है अवेलेबिलिटी ज्यादा है। एंड एडजुवेंट्स आई थिंक इज द बेस्ट बट देन इट हैज टू बी केप्ट अंडर रेफ्रिजरेशन। इसी तरह कोलोन कैंसर है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने का है। कैंसर वगैरह जो है ये आपको पता ही है कि बीटा ग्लूकोरोनिडेस और इस टाइप के एंजाइम से होते हैं। तो वो जो एंजाइम्स हैं ये इनको प्रिवेंट करता है। जब प्रोबायोटिक कल्चर लेते हैं तो वो इट द ब्रेकडाउन उनका नहीं होने देता। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है और ब्लड प्रेशर का भी रिडक्शन करता है, क्योंकि ये एस टाइप जो इनहिबिटर्स हैं पेप्टाइड उनको जो है नहीं बनने देता।
इसी तरह बीटा गैलेक्टिसिडेज, बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को एक ये बीमारी होती है कि वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसमें बीटा गैलेक्टिसिडेज एंजाइम की कमी रहती है। इस पे हमारे भी लैब में हमने काम किया। ये तो खैर गूगल का पिक्चर है जो मैं दिखाना चाहती थी कि किस तरीके से लैक्टोज को ग्लूकोज और माल्टोज में डिवाइड, मतलब उन्होंने ब्रेक डाउन किया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ये बीटा गैलेक्टोज के प्रेजेंस में इन प्लांटेरियम। हमने भी अपना एक चेदार चीज से आइसोलेट किया अपना ओन कल्चर, जो हमने माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन सेंटर में डिपॉजिट कर दिया है। उससे हमने देखा कि बीटा गैलेक्टिसिडेज एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, जो कि हमने रैट्स में भी करके उसको दिखाई। इसी तरह एंटी कैंसर एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई। एंड देन पेप्टिक अल्सर्स जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से होते हैं, वो भी अधिकतर डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं इस मामले में, लेकिन एंटीबायोटिक्स का बहुत सारा वही साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसको जो है बहुत सारे प्रोबायोटिक्स से, ईस्ट से, वो भी प्रोबायोटिक्स है, उससे क्योर किया जा सकता है। इसी तरह डेंटल केरीज जो है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेजेंस की वजह से होती है, जो कार्बोहाइड्रेट उस पर पड़ा है, उस पर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेजन का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसको भी आजकल ये जो टूथपेस्ट है उसमें भी काफी सारे जो प्रोबायोटिक्स ऐड करने लगे हैं, ताकि जब वो ब्रश कर रहे हैं तो आसानी से प्रोबायोटिक्स वहां पे जाके एडहेयर कर जाए और कोलोनाइज कर जाए। इसी तरह एलर्जी अगर हम देखें तो बहुत तरीके की एलर्जीज, आस्थमास, वो भी ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है IgE का लेवल कम कर देता है और TH2 साइटोकिन का लेवल भी कम कर देता है। उसी से क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। जितने भी आस्थमा, राइनाइटिस हुए, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया इसमें काफी लाभकारी दिखाए गए हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ये HIV पेशेंट्स, मैंने HIV पेशेंट्स के साथ भी काफी काम किया है। वहां भी देखा कि जितना इन्फेक्शन है देखा जाए तो क्लॉस्ट्रीडियम, शिगेला, कैम्पाइलोबैक्टर, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस और माइकोबैक्टीरियम, इन सबका मिलजुल के जो इन्फेक्शन है उससे इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि वो HIV का रोग ले आती है। अगर हम देखें जब प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक देते हैं, कि जब HIV होता है तो CD4 सेल डेथ हो जाती है, क्योंकि ये IgE का लेवल, जैसे ही ये प्रोटेक्टिव लेयर आता है प्रोबायोटिक का, तो वो जो है IgE का लेवल कम कर देता है, HIV का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता और CD4 सेल्स मरते नहीं। अब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ को देखें तो जो पेट से है और मस्तिष्क से है, इस सबका एक टू वे डायलॉग है। ये किस तरीके से होता है मैं आपको बताऊंगी। कॉग्निशन हुआ, हुआ, फियर साइकोसिस बोलते हैं, एंजाइटी होती है लोगों में सब जो है, हम जो प्रोबायोटिक्स अगर खाएंगे वो किस तरीके से उसको कम कर सकता है। बिहेवियर शिफ्ट है, वो भी सब जो है, सिजेरियन बच्चा होता है या नॉर्मल बच्चा वेजाइना से होता है, उसमें भी माइक्रोबियल जितना वो है, वो माइक्रोबायोटा जो है अलग अलग तरीके से देखा गया है। जिस तरीके से नॉर्मल होता है उसका माइक्रोबायोटा काफी, उसमें प्रोबायोटिक्स रहते हैं। इसी तरह ये जो है, अगर हम देखें तो ये माइक्रोबायोम जो है वो एक वेगस नर्व से ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि गाबा हुआ आपका, ब्यूटाइरिक एसिड, ये लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम बनाते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन है, एस्चेरिचिया कोलाई, बेसिलस, सैकरोमाइसिस बना रहे हैं। एसिटोकोलिन है जो लैक्टोबैसिलस, सेरोटोनिन है जो कैंडिडा, स्ट्रेप्टोकोकस, एस्चेरिचिया और एंटेरोकोकस बनाते हैं। सो बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं जिससे पता चला कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बना रहे हैं। इसी तरीके से ये वेगस नर्व से जो है गट और ब्रेन ये कनेक्टेड रहते हैं। ये माउस मॉडल्स में भी इसको दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है कि ये माइक्रोग्लिया फंक्शन में, जो कि इम्यूनिटी के लिए मशहूर है, उस तरीके से कैसे जो है ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पेपर भी बताया 2025 का अभी रिसेंट पेपर है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ये सिग्नलिंग होता है और कैसे ये न्यूरो इम्यून सिस्टम को बना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोबायोटिक्स जो गट में हम खा रहे हैं या गट में एडहेयर हो रहे हैं या गट में हमारे साथ कोलोनाइज हो रहे हैं, वो किस तरीके से ब्रेन को, जैसे शाइजोफ्रीनिया होता है, ये सब चीजें जो उसी से इफेक्ट होती है, जिसको बचाया जा सकता है। वेगल नर्व रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट सिग्नल लेके जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, वो डायरेक्टली जो है किस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। इसी तरह टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, टॉल रिसेप्टर 2 एंड टॉल रिसेप्टर 4, वो किस तरीके से पेप्टिडोग्लाइकन और इसको करते हैं। और लैक्टोबैसिलस,
में और बैक्टीरियाज में से देखा गया है कि ये काफी इन सेंसरी ऑर्गन्स को, सेंसरी न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है इन ऑर्गेनिजम्स में कि किस तरीके से माइक्रोग्लिया को भी इम्प्रूव करते हैं इम्यूनिटी को, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स को भी इंटेस्टाइन के फिर जो है वो वेगस नर्व से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चली जाती है। अगर हम डिस्रप्शन देखें न्यूरोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक, आजकल साइकेट्रिक कंडीशंस में, अल्जाइमर्स में, पार्किंसन में, डिप्रेशन में, ऑटिज्म में, आप देखिए इस तरीके के स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी जो है ये प्रोबायोटिक कल्चर्स जो है काफी फायदेमंद दिखाई गए हैं। तो दिखाया गया कि देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन गट माइक्रोबैक्टीरिया एंड द मूड डिसऑर्डर्स। ये ऑल्सो देखा गया कि अगर डिप्रेस्ड पेशेंट्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा के और आप इसमें जो है हेल्दी पेशेंट्स में डाल दें तो वो पर्सन भी डिप्रेस हो जाता है। इससे पता चलता है कि हाँ, ये डायरेक्ट कनेक्शन है। ये साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है। उसको साइकोबायोटिक्स कहने लगे हैं, आजकल नया टर्म दिया है, जैसे जो कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को भी देयर इज अ अप्रोच, थेरेपेटिक अप्रोच कॉल्ड एज माइक्रोबायोटा गट ब्रेन एक्सेस, और इस वर्ड को बोला है साइकोबायोटिक्स, जो कि प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, सिनबायोटिक्स एंड पोस्टबायोटिक्स। पोस्टबायोटिक्स एक नया टर्म है जो कि मेटाबोलाइट्स ऑफ द प्रोबायोटिक्स होते हैं। इन सभी को ओवरऑल जो है ये न्यूट्रिशनल इनटेक से फर्क पड़ता है। अगर हम प्रोबायोटिक फूड की बात करें जो मार्केट में है, तो योगर्ट है। हमने भी इस पे योगर्ट पे काम करा, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या बल्गैरिकस में, मेरे पास एक बल्गेरिया का प्रोजेक्ट था where I was a PI and I worked in the laboratory where Lactobacillus bulgaricus was invented. So ये बहुत फायदेमंद फूड प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर हम CFTRI की, ये पेपर में आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मोस्ट डाउनलोडेड फूड टेक्नोलॉजी अगर देखें तो ये इडली आप देख सकते हैं और डोसा, ये मेरे टीम की टेक्नोलॉजीज हैं जो हमने, ये 1500 डिमॉन्स्ट्रेशंस इसके हो चुके हैं, और हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, जब तक मैं रिटायर हुई थी 500 इंडस्ट्रीज को हमने दे दिया था, और हमने इसको पब्लिश भी किया इन अ जर्नल ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी में, ताकि वो दूर दूर तक जाए ये टेक्नोलॉजीज और लोगों को पता चले। हम रूरल एरियाज में भी गए, जो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर प्रकाश अलामी के साथ हमने एक प्रोसेस बनाया बायोकर्ड का, जिसमें हमने प्रोबायोटिक कल्चर डाला, और हमने एक और मोरिंगा का बनाया जिसको ड्रमस्टिक बोलते हैं। बीट रूट के साथ हमने प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बनाया जो कि काफी मतलब फायदेमंद लोगों को दिखा, प्लांटेरम यूज करके। इसी तरह हमने ओट्स के साथ बनाया, क्योंकि उसमें बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। तो हमने देखा, हमने इस तरीके से उसको देखा कि वाटर एक्सट्रैक्ट में जो है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी ऑलमोस्ट 95% होती है। तो बहुत आसान है, क्योंकि यूजुअली लोग जो है इथेनॉल में कर लेते हैं, लेकिन इथेनॉल से हमें इतना फायदा नहीं है, जबकि अगर वो एक्टिविटी वाटर एक्सट्रैक्ट में आती है तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ऐसे ही इंसान उसको ले सकता है और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आराम से उसके मतलब जो है मेटाबोलाइट्स बन जाएंगे। इसी तरह हमने एक और फूड प्रोडक्ट बनाए, सब काफी मेरे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारी टीम के। व्हीट और रागी को जो हमने माल्ट किया, ये प्रोसीजर है, ये हम मलेशिया में मेरी स्टूडेंट गई थी, जहां हमें फर्स्ट प्राइज इसके लिए मिला। और वेरी वेरी हेल्दी, बिकॉज उसमें हमने डिफरेंट मिनरल्स को, कैल्शियम को, आयरन को, सबको देखा, एंटीऑक्सीडेंट्स को, बहुत मतलब फायदेमंद, ये लाभकारी रहा। फिर फ्रोजन योगर्ट है जो अवेलेबल है लालूस का मार्केट में, और हमने भी इस पे काम किया। मेरी स्टूडेंट अब अमेरिका में है, और गोट कैमल मिल्क पे हमने काम किया, और उसमें हमने देखा कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी एंड फैटी एसिड प्रोफाइल जो है पीडियोकोकस में से बहुत अधिक था, which was not reported till date. And then फिर हमने गुड वैली का, ये तो मार्केट में अवेलेबल है, फ्रूट जूस से उन्होंने बनाया है। चॉकलेट एंड ग्रेनोला बार्स हैं। फिर काशी का इंडिया में है, काशी वाइव, उसने भी काफी दिखाया कि 1 बिलियन सेल काउंट्स हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के। याकुल्ट जो है, याकुल्ट डेनोन इंडिया, 3 जगह से, जापान से, और इसने डेनोन से, और चाइना से, और इंडिया से, और सिंगल शॉट में जो 8 बिलियन काउंट्स ऑफ लैक्टोबैसिलस केसी वो दे रहे हैं। राइसेरा, जैसे कि हम साउथ में तो बहुत ही कॉमन है, मसरू अन्ना बोलते हैं हम लोग उसको, तो राइस और कर्ड मिला के, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बाहर लोग राइसेरा बोल रहे हैं, उसको दे रहे हैं। लेकिन अनदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका डोसेज क्या है, कैप्सूल में दे रहे हैं या स्टिक में दे रहे हैं या पाउडर ब्लेंड है या च्यूएबल है, वो डॉक्टर को पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ये इंडिविजुअल कस्टमाइज करना पड़ता है कि किस तरीके से जो है, क्या एज है पेशेंट की, उस हिसाब से वो दे सकते हैं।
एक और चीज जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी प्रोबायोटिक्स आ गए हैं। एक ही मल्टी प्रोबायोटिक लेने के बजाय कई प्रोबायोटिक्स को वो एक ही में कर इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि वो अलग अलग जो है उसका फायदा दे सके पेशेंट को। सिम्बायोटिक भी हैं, प्रीबायोटिक भी अवेलेबल है डिफरेंट फॉर्म्स में आजकल मार्केट में, जो जिसमें कि आपका गार्लिक, अनियन, चिकोरी रूट आ गया, एस्पेरेगस आ गया, बार्ले आ गया, ये सब इसके जितने भी फाइबर्स हैं, मतलब कि ये जो है आपको प्रोबायोटिक की अमाउंट को ज्यादा बढ़ाएंगे। इसी तरह ये प्रोबायोटिका है बहुत सारे, मैंने आपको बताया। मदर डेयरी जो है ये बी एक्टिव से आ गई है, जो कि इंडिया में है। मतलब इंडिया में भी अमूल और ये मदर डेयरी काफी अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, प्रोबायोटिक्स में। नेस्ले बहुत अच्छा काम कर रहा है। देन ये मिल्क, सोया, ये जितने भी हैं उसमें आप देखेंगे तो प्रोबायोटिक इंडियन ट्रेडिशनल फूड्स में मिलते हैं। हालांकि वड़ा वगैरह जो कि डीप फ्राई किया जाता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो चांसेस है कि काफी कुछ उसमें जो है वो मर जाते हैं। इसी तरह अगर हम सैकरोमाइसिस देखें, जो कि ईस्ट है, सैकरोमाइसिस बोलार्डी, वो बहुत ही मतलब उसमें मतलब लाभकारी इफेक्ट है। और अगर ये फ्रीज ड्राइड ले तो उसको आपको फिर फ्रिज में भी या नहीं रखने की जरूरत, रूम टेम्परेचर में उसको आराम से रख सकते हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा होती है। ये मार्क फेरलैंड का मैं आपको पुराना ये पेपर दिखा रही हूँ, जिसमें कि उसने प्लेसिबो और ये काम किया और देखा गया कि एएडी, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, तो अगर ये मतलब, और इसमें ना रेजिस्टेंस का भी चक्कर नहीं होता। तो अगर मेडिकल डॉक्टर्स साथ में आपको एक कैप्सूल सैकरोमाइसिस बोलार्डी का दे दे, तो मैं समझती हूँ वो मच बेहतर है कि अगर वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का बिना कल्चर करे दे, क्योंकि उसमें तो हमें पता नहीं है कि वो रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है। पर सैकरोमाइसिस में ये प्रॉब्लम नहीं आता ईस्ट में। तो इसी तरह वेंकोमाइसिन, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रा एंटीबायोटिक है, उसके साथ भी देखा गया कि वो काफी आराम से जो है सैकरोमाइसिस डिजीज को कम कर सकता है। मेरे स्टूडेंट ने भी, जो कि मेरे पास नाइजीरिया से पीएचडी स्टूडेंट था, उसमें हमने नाइजीरिया की ट्रेडिशनल फूड से आइसोलेट किया एक ईस्ट, जिसका नाम है पिशिया, वो भी हमने वहां पर सबमिट कर दिया है। और उसमें देखा गया कि लिपिड कंटेंट को, कोलेस्ट्रॉल को हमने पहले रैट्स में किया और सेल लाइंस में भी करके दिखाया कि ये जो ईस्ट है किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को जो है ये कम कर सकता है। सो ये सारे हमारे पब्लिश पेपर्स हैं। बहुत सारे कमर्शियल प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हैं, जिसमें एसिडोफिलस, सैकरोमाइसिस सेरेवाइसिया, ये देखिए आप, फ्लोरा स्टोर है, जो कि डॉक्टर्स जो है, मेडिकल डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बायोकोडेक्स है, ये सैकरोमाइसिस का आता है। और बाकी ये जितने याकुल्ट वगैरह है, इसमें बैक्टीरिया हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के, इसमें 2 बैक्टीरिया हैं प्रोबायोरा में और इसमें। तो लेकिन एक क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है, क्या ये प्रोबायोटिक्स लेना सेफ है या नहीं। कई बार मुझे लोगों ने ये पूछा है कि क्या इससे कोई इलनेस तो नहीं हो जाएगी या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। यस, इट इज रेयर बट इट इज पॉसिबल। कि ये पॉसिबल है कि ब्लोटिंग हो सकता है, या कुछ एबिडोमिनल पेन हो सकता है, या कोई बहुत ही कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है तो कुछ तरीके का, या कई बार क्या है, ड्रग का जो है जीन अगर चला गया या उसका प्लास्मिड चला गया, तो पॉसिबल है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं प्रोबायोटिक कल्चर के। एडवांटेजेस तो मैंने आपको काफी सारे बता ही दिए, पर डिसएडवांटेजेस ये है कि देखना पड़ेगा कितने ट्रायल्स हुए हैं, कितना परसिस्टेंस है, ट्रांसलोकेशन तो कोई नहीं हो गया, कोई ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस प्लास्मिड तो नहीं हुआ, इन्फेक्शन तो पॉसिबल नहीं है अगर कुछ बहुत ही जिनकी इम्यूनिटी कम है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है देखना। तो जनरल एस्पेक्ट में तो कैरेक्टराइजेशन बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको बताया। वाइबिलिटी बहुत जरूरी है प्रोडक्ट में, सेफ्टी कैसी है उसकी, स्टेबिलिटी, बाइल एसिड के, लो पीएच के, सर्वाइवल, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर, और गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रेटिक जूस के बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जेजुनम में 4% बाइल से आप देखिए कि 2% बाइल हुआ, फिर 1.5% बाइल हुआ कोलोन तक आते आते। एडेरेंस ऑफ पैथोजेंस और एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, मैंने जितने भी आपको अपने लैब के काम दिखाए हैं, वो सब एक एक चीज बहुत ही आवश्यक है बिफोर वी से कि यस इट इज अ प्रोबायोटिक कल्चर। अदरवाइज वो बहुत लोग, काफी सारे लोग पेपर्स भेज रहे हैं, पर वो एक एक चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना मैं उनको यही कहती हूँ, आप अपना दोबारा सबमिट करिए ये सब काम करने के बाद। तो स्ट्रेन आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है।
जीन और स्ट्रेन और कल्चर कलेक्शन सेंटर में आप जितना भी काम करें, अगर आप इस तरीके का आइसोलेट खुद कर रहे हैं तो डिपॉजिटेड चंडीगढ़ में हमारा एमटीसीसी बहुत बढ़िया कल्चर कलेक्शन सेंटर है। इसी तरह पूसा इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा इंडिया में कल्चर कलेक्शन सेंटर है अपार्ट फ्रॉम अब्रॉड। फिर फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन जो है, एनिमल स्टडीज जो है वो देखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो एनिमल्स में करने के बाद डबल ब्लाइंड रैंडमाइज अगर अलाउ कर देती है आपको, हमने तो सेल कल्चर में करके देखा सेल लाइंस में, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके लिए जो है फिर पेशेंट्स और हॉस्पिटल उन सब की काफी परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरह फिर लेबलिंग बहुत जरूरी है। अगर लेबलिंग कैसी करी गई है, क्या उन्होंने कंटेंट से लेके उसका नंबर, स्टोरेज लाइक प्रॉपर स्टोरेज, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन सब दी है कि नहीं। अगर प्रोबायोटिक रिसर्च इंडिया में देखें तो सेंट्रल सीएफटीआरआई, फिर आपका करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में, और नेस्ले पानीपत में काफी काम कर रहे हैं। अगर हम ये देखें तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो है फॉरेन कंट्री में काफी हुए हैं, वहां पे मतलब थोड़ा मे बी आसान होता है या मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्राई किया था कि पेशेंट्स में हॉस्पिटल पे कर लूं, लेकिन बहुत ही सारी आपको कमिटीज से जाना पड़ता है एंड इट इज नॉट दैट इजी। तो वहां पे अगर आप देखें इतने सारे पेपर्स हैं, जब उन्होंने डिफरेंट 2 हफ्ते के बच्चे को लेकर, और इधर आप देखिए तो 94 ईयर्स तक का आदमी, सब पे काम किया गया है, जिसमें इन्होंने प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया लिए हैं, ईस्ट लिए हैं, डोजेस बताई हैं, किस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्टर किया है, और एएडी के लिए ये एंड एंटीबायोटिक जो है आपका एसोसिएटेड डायरिया के लिए। इसी तरह एक्जिमा पे काम करा गया है और देखा गया है कि किस तरीके से ये कम किया जा सकता है। काफी सारे साइंटिस्ट ने, मैं आपको यही बता रही हूँ, सब काम जो है फॉरेन साइंटिस्ट के हैं, जिसमें उन्होंने एलर्जी, आस्थमा, राइनाइटिस सभी में बताया है। आप देखिए 15 साल का से लेके, और इन्होंने मेल्स, फीमेल, जेंडर एसोसिएटेड भी करे हैं कि किस तरीके से ये कम हो सकता है। और ये जितने भी मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रायल्स जो है प्रोबायोटिक थेरेपी के, क्रॉन्स डिजीज के लिए भी करके दिखाए हैं, फीकल एंजाइम्स किस तरीके से कम हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं जो कि इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट जो है अच्छा कर सकते हैं, एंजाइम एक्टिविटी जो क्या कैंसर के एंजाइम्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, डिग्रेड नहीं होने देते, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर इंडिया में हम देखें तो कौन मैन्युफैक्चरर्स है, मैं आपको बताना चाहूंगी। मायरोबैक्स है हैदराबाद में, यूनिक बायोटेक है, अलायंस बायोसाइंस है पौंडीचेरी में, एग्री लाइफ है इंडिया में हैदराबाद में, रुचि बायोकेमिकल्स है, सामी लैब है बैंगलोर में, और मदर डेयरी है। इसी तरह फॉरेन कंट्री में अगर हम देखें तो यूएस लेबोरेटरी है, मतलब बहुत सारे, चाइना में, डेनमार्क में काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं जो कि ये प्रोबायोटिक बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम ये देखें तो फ्यूचर प्रोबायोटिक कल्चर जो है हमें टारगेटेड होना चाहिए, परसिस्टेंस इन द डीआई ट्रैक बहुत जरूरी है, और एंटी माइक्रोबियल के अगेंस्ट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है बहुत फीजिबल और स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि म्यूटेशन हो गया तो हमें साल दर साल देखना पड़ेगा कि वो कितना स्टेबल है। मैंने कोई भी पेपर पब्लिश करने से पहले 2 साल तक हमने एक्टिविटी हर 3 ट्रिप्लिकेट्स देखी है, तब हमने पब्लिश किया पेपर। कैरेक्टरिस्टिक और वेल डिफाइंड जो है इनके इम्यून मॉड्यूलेटरी जो है इफेक्ट्स होने चाहिए। ये मेरी 6 किताबें हैं जो पब्लिश हुई हैं सीआरसी से और स्प्रिंगर से। ये प्रोबायोटिक एंड देयर रोल इन इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ है, बाय नीपा publisher and also by CRC. तो they are all books are available on Amazon which you can buy. इसमें मैंने सभी केस स्टडीज और सभी चीजों को दर्शाया है। ये जो है प्रोबायोटिक्स पे मेरा दूरदर्शन साइंस में प्रोग्राम आया था, और ये टीवी पर और ये एफएम रेडियो पर। कर्नाटका में मैं रूरल प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पे, हमने बहुत जगह जा जाके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के ये जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स करे, लोगों को समझाया कि किस तरीके से सीएफटीआरआई टेक्नोलॉजीज आपको लाभदायक दे सकती हैं, और बहुत सारे पेपर्स वगैरह में ये पब्लिश हुआ। बहुत हमने जो है एम्पावरिंग वर्कशॉप्स करी जो फार्मर्स के लिए, फीमेल्स के लिए, एम्पावरमेंट डिसेबल्ड के लिए, वो सभी हमने किया। तो प्रोबायोटिक रेवोल्यूशन जो है मैं बोलती हूँ उसको, ये सूक्ष्म जीवी जो है हमारी जो है पूरी उसको बदल सकते हैं। एक क्रांति इन्होंने ला दी है, पर हमें उस हैबिट को रियली बेनिफिट की तरफ लेके जाना है, और हैप्पी गट हैप्पी स्ट्रेंथ। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे धन्यवाद। मैं आपको सभी को देखती हूँ जिन्होंने आज का ये ज्वाइन किया। हम सबको
बहुत अच्छे से प्रोबायोटिक्स के साथ रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सिंह साहब, मैंने आपके टाइम से जितना आपने बोला था उसमें कंप्लीट कर दिया है। Thank you very much, Dr. Renu Agarwal. You gave an excellent talk on probiotics and the microbiome. It is very useful to all of us, and we have learned so many new things from your talk. Thank you very much, Dr. Renu. I will be happy if any questions are there, sir. Yes, please ask any question to Dr. Renu. Dr. Prakash? नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। हेलो नमस्ते। प्रकाश, कैसे हैं? वंडरफुल लेक्चर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा शुरू का चला गया, मैं कोई जब बात नहीं। देखा सर का तो तब मुझे याद आया कि आज लेक्चर है मैडम का करके, तो इसलिए हमने बोला कि हिंदी में तो सुनना ही है मैडम को, है ना। बहुत अच्छा रहा, काफी आपने जानकारी दिया है। थैंक यू। एक्सपीरियंस हम भी तो हम एक दूसरे को जानते हैं और हमको तो पता है, तो हम बाकी ऑडियंस की राह लेंगे या उनके अगर कुछ क्वेश्चन है तो उनसे लेंगे पहले। बंसल साहब, बंसल साहब। डॉक्टर हाँ बंसल, मैडम, नमस्कार डॉक्टर रेणु जी, बहुत बहुत नमस्कार। बधाइयाँ आपको। डॉक्टर शानदार बहुत ये प्रेजेंटेशन मैं डॉक्टर करा है साहब को ये आपने। बताना है, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये डॉक्टर साहब जो है ग्लोबली नोन है, एंड ही इज अ पेडियाट्रिशियन। ही हैज जॉइंड फ्रॉम कोटा, राजस्थान। हाँ बताइए बंसल जी। हाँ, तो मैं देख रहा था कि किस तरह से इवन फ्रॉम फूड हम अपनी डाइट में रेगुलरली इनको लाएं, और इवन लाइक जी मेडिसिन्स हैं। आई थिंक नाउ इट इज टाइम दैट मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम द बेंच टू बेड साइड, जी एंड द रेंज जो आपने बताई, क्योंकि और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर क्वाइट सेफ, वी हैव सीन इन आवर प्रैक्टिस आल्सो। और जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, क्या होता है कि मार्केट में बहुत प्रिपरेशंस मिल रहे हैं, हाँ बट उनमें जो दे आर नॉट स्ट्रेन स्पेसिफिक, या जो उनकी कॉलोनी काउंट है वो पूरा नहीं है, छोटे छोटे डोज डाल देते हैं और फिर उनका इफेक्ट नहीं आता तो सोचते हैं दवाई व्यर्थ है। जी So, and I think we had sent some sample to your lab and of these pre-probiotics, and you had assessed them, या and वही मैंने बताया। that you had come out with that this Saccharomyces boulardii is one which is really good, या and the other was probably एंटरो Lactobacillus, जर्मेनिका। yeah, and one which we get in the market by the name of वही आपने मुझे Enterogermina. बहुत सारे सैंपल्स दिए थे, तो मैंने एक जी स्टूडेंट ने इसी पे काम किया कि जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, तो हमने ये देखा गया, हमने देखा कि वो जो है अधिकतर मर जाते हैं से, मतलब वो वैल्युबल नहीं थे। बट खाली आपने जो बताया अभी सेक्रोमाइसिस बोलार्डी, वही इसीलिए मैंने बोला सेक्रोमाइसिस बोलार्डी ले सकते हैं। और दूसरा वो आपने मुझे सैंपल दिया था एंटेरो जर्मेनिका का, हाँ, वो Enterogermina. भी बहुत अच्छा है। बड़ा इट वाज अ प्लेजर हियरिंग यू। बहुत ही रिगरस रिसर्च है आपकी, और मतलब क्या कहना चाहिए, अनक्वेश्चनेबल एंड बिल्कुल, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपने समझाया। आई थिंक कोई लेमैन भी सुन रहा होगा तो उसके भी समझ में ये चीजें सब आई हो। थैंक यू बहुत डॉक्टर। बहुत बधाई। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने टॉक हिंदी में दी। शी टॉक्ड इन हिंदी, which आपने is the original language. जी यस, That is the एंड beauty दैट of the टू talk. इट वाज सो फ्लुएंट इन Yes, हिंदी। yes, वो जो सूक्ष्म जीवी और इस तरह के शब्द भी यूज किए, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। bilkul. Right. Any more question, please? What about Dr. Williams? Yeah, I guess I'm audible. Thank you so much, Dr. Renu, for having shared this link with me. I am not from the science background, but when I read the title about probiotics, I was a little inquisitive. And thank you so much. It was very informative for me. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. And I will share your number with Dr. Swaranjit Singh if it is okay with you. Sorry, I didn't get it. I will share your number with Dr. Swaranjit Singh if it is okay with you.
Yeah, sure. Yeah, because Not he is an a global person and he's very Okay. active and doing Okay. a lot of work actually. Okay. If He I is can having be a of full any assistance. global campaign on buttermilk. Okay. Oh. So buttermilk also comes under the same Yes. Yeah. probiotic, as I Yeah. understand. I just And he know. is one of the leading scientists of our country. Oh, wonderful. So nice to know, that all of you are associated together and you're bringing a lot of awareness about probiotics to people. I had mentioned a question in between your lecture. Just wanting to know whether consuming more of probiotics can have any side effects. But then you answered that through your Yeah. uh, so I didn't have any. It was answered. The question was answered. Thank you so much. I really find that I did a good thing, taking time off and listening to your lecture. And thank you so much for having shared. And I just happened to see it in the morning. You shared the link, and I'm very grateful. Thank you so much. Thank you, ma'am. It was Thank you. wonderful. Thank you. You joined it. Thank you. Wonderful. Thank you. Any more question? Dr. Prakash, you can ask something. No, we are from the same team. That's what he said. Yeah, that's what he said. Yes. Yeah, maybe Madam can highlight how we can actually look for the commercialization. So this is what even I am also struggling with our probiotics. In general opinion, or from the audience, I am asking actually on behalf of audience, how we can actually promote this fermented product or probiotic enriched any product commercialization. भाई जैसे हमारी तो दो टेक्नोलॉजीज इडली की और डोसा बैटर की तो आपको पता ही है, हमने डिपार्टमेंट में ही करी थी। तो फिर हमने पहले पायलट प्लांट में गए और उसके बाद फिर हमने जो है उसको बड़े स्केल पे किया, अलग अलग मॉल्स में जाके भेजा और फिर लोगों को पहले तो हमने मुफ्त में ही बांटा। बहुत सारा सामान हमने लोगों को मुफ्त में ही बांटा, इंस्टीट्यूट में लोगों को बांटा, एडवर्टाइज किया उसको, मतलब माउथ टू माउथ भी किया। इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि उसको हम बढ़ा सकते हैं। फिर आजकल तो खैर बहुत ज्यादा चीजें आ गई हैं, जैसे आपका टीवी हुआ, टीवी एडवर्टाइजमेंट, मेरा तो जैसे इन्होंने डीडी साइंस में किया, उस तरीके से भी किया जा सकता है। We have हाँ to प्रकाश। promote in a totally different way. One side, another side, like the organization like MBSI also can actually help. How we are now. आप हिंदी में ही बोलिए। हाँ, हिंदी में अच्छा रहेगा। जैसे अभी हम फिलहाल MBSI कर रहे हैं बटर मिल्क के बारे में, वैसे ही इसको भी प्रमोट करना है। प्रोबायोटिक्स हो गए या बिल्कुल प्रोबायोटिक इनरिच फर्मेंटेड प्रोडक्ट हो गए, लोगों को कन्विंस करना है कि ये खाने से या पीने से बहुत कुछ एडवांटेजेस हो रहा है। आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, बायोसिप वाला। तो ये करना है। अभी स्वरणजीत सिंह है अभी फिलहाल चेयरमैन ऑफ बटर मिल्क का कैंपेन। तो सर ने बटर मिल्क के साथ साथ थोड़ा सा प्रोबायोटिक्स भी अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्रोबायोटिक रिसर्च के लिए, रिसर्चर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। That's why we invited Madam Renu to tell us about probiotics. थैंक यू सिंह साहब फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। you, मुझे madam. ये आपको ये देने के लिए बहुत ही मैं आपकी धन्यवाद दूं। Thank you. And this was the first lecture on probiotics in Hindi. हाँ सर। That too from a lady. एक छोटा सा सजेशन। Yes. सूक्ष्म जीवाणु के बजाय, सूक्ष्म जीव के बजाय जीवाणु यूज करने में अच्छा रहेगा। जीवाणु। हाँ, जीवाणु। Yes. जीवाणु इज द राइट वर्ड। जीवाणु। और जीवाणु से बिल्कुल संस्कृत का नाम है और बहुत अच्छा नाम है। बिल्कुल। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत आता है। Right. एक्चुअली सर, जीवाणु इज बैक्टीरिया एंड विषाणु इज वायरस। तो फिर वो सैक्रोमाइसिस कहाँ जाएगी, वो दिक्कत आ जाएगी शायद, इसलिए मैडम ने सूक्ष्म जीवी यूज किया। नहीं, ये बात है। जीवाणु सही वर्ड है, बस दैट्स राइट वर्ड। जीवाणु for bacteria you use, and if it is a virus you say it is vishanu. I think, sorry sir for this term, I don't know fungus के लिए सूक्ष्म is a universal word, I think sir. जीवाणु इज अ सोशल वर्ड। जीव को नहीं, जीव जो है, जो जीव मतलब जिंदगी, जीव का मतलब है जिंदगी। अणु सूक्ष्म। तो जीवाणु इट कैन बी इवन फॉर विषाणु आल्सो इट इज जीवाणु। चलिए देख लेंगे हम डिक्शनरी में। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैम ना बात ये है, अगर हम बैक्टीरिया, फंजाई और
वायरस को अगर कंट्रीब्यूट करके अगर हमें बोलना होगा तो हमें माइक्रोब्स ही बोलना पड़ेगा ना, और वही। माइक्रोब्स की तो हिंदी सूक्ष्म जीवी होती है। माइक्रो ऑल्सो अगर मैंने पर्टिकुलेट किसी, एक्चुअली सूक्ष्मजीवी रखा क्योंकि ईस्ट भी मैंने इंक्लूड किया है, सैकरोमाइसिस, यस मैम, इसलिए यू आर मैंने राइट। सूक्ष्मजीवी रखा है। सूक्ष्मजीवी बेसिकली अगर प्रॉपर, अगर हम किसी पर्टिकुलर एंटिटी की बात करते हैं तो फिर हमें उसके लिए फिर वर्ड यूज करना पड़ता है। हम इस पे बहस नहीं करें, इट्स ओके। Yeah, we have to talk Okay, about thank the you. whole microbes, whole microbiome. माइक्रो Not only bacteria, not only yeast, but the whole viruses, yeast, everything. Yeah. Okay. Very nice. And now I request Nikhil to give a vote Yes, of sir. thanks. Okay, sir. So on behalf of everyone, sir, am I audible? Yes, Yes. yes. Okay. So on behalf of everyone present here, I would like to express my sincere gratitude to Dr. Renu ma'am and Dr. Saranjit Singh sir for sharing their valuable time, knowledge and insights with us. I would also like to thanks to all of you for their active involvement and presence, which made this session truly meaningful. So thank you all once again. It was a great session. I thank everybody for participating in the discussion also and listening to the lecture. And I also thank Mr. Nikhil, who gave Thank you, the sir. introduction today and the vote of thanks. Thank you, everybody. Thank you so much, sir. Thank you. So Thank can you, you ma'am. send the recording? Yes, surely, surely. प्लीज सेंड मी द रिकॉर्डिंग आल्सो। रेणु जी, Yes, yes. रेणु जी रिकॉर्डिंग मेरे को भेज देना आप। Definitely भेजेंगे, definitely भेजेंगे। सिंह साहब के पास रहेगी, वो मुझे भेजेंगे। Yes, I will forward to all of you. Yes, yes. Okay, bye bye. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you.